Assalamualaikum to all the aspirants. So today we will start our new subject officially, town planning and urban management. So in shortly we will discuss that why the subject important, what's its subject trend or marks trend every year, and why is it important in civil services. So, why town planning and urban management matters in CSS और PMS exams? Because it builds strong governance understanding. जब आप कमीशन में आ रहे हैं तो गवर्नेंस के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज होती है इस सब्जेक्ट को पढ़ने से. इट एक्सप्लेन्स हाउसिंग स्कीम, हाउसिंग ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंट एंड सिटी मैनेजमेंट इश्यूज. सेकेंडली, हाई CSS यूटिलिटी. जितने भी इसके सब्जेक्ट्स हैं, आइदर इट इज़ ऑप्शनल और compulsory subjects, it interrelates with so many subjects like it sports, essay, current affairs, Pakistan affairs, public administration, governance and environmental topics. So you have to opt this subject for better scoring. Third one is highly relevant in Pakistan, क्योंकि इसका सिलेबस बेसिकली जो है वो पाकिस्तान के पास सिविलाइजेशन है, इसकी हिस्ट्री है, अर्बन प्लानिंग है और किस तरह से हमें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को देखते हुए highly relevant in Pakistan. That are some topics like urbanization, pollution, traffic crisis, and climate challenges make it scoring subjects. Fourth one is to boost analytical skills. These subjects boost your ability analytically. It helps in writing policy-based, solution-oriented answers. So, why you have to come on my channel? Because this is only exclusive on this channel. The Competitive Scholar is the only channel giving complete exam focused notes for your study. So be with us till this subject is not ending. So let's start our today's topic. The outline of the subject saying that definition of town planning, goals and objectives of town planning including multidisciplinary approach, relationship of town planning with other professions. सो देर आर सम डेफिनेशंस. कभी कभी ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कि टाउन प्लानिंग को डिफरेंट जो है वो ऑथर्स के थ्रू एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ टाउन प्लानिंग. सो ये जितने भी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, आपने इनको लाइट नहीं लेना और आपने सारी जो है वो करनी है. अकॉर्डिंग टू जॉन टी हावर्ड, ही सेज दैट town planning is the guidance of the growth and change of urban areas. As such, it aimed at fulfilling social and economic objectives which go beyond in physical form and arrangements of buildings, streets, parks, utilities, and other patterns of urban development. Secondly, according to Thomas Adam, he says that town planning is the art of planning the physical development of urban communities with the general objective of security, healthy and safe living and working conditions, providing efficient and convenient form of circulations and advancing the general public welfare. It aims at the preservation of natural beauty as essential to healthy living conditions and leads to promotion of beauty in building as a byproduct of sound social and economic growth. सो इन डेफिनेशंस को अगर आप समझ के पढ़ेंगे कि टाउन प्लानिंग क्या है, सो ये इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे और लर्न करने में भी आसानी होगी. थर्ड वन इज़ अकॉर्डिंग टू लेविस मफर्ड, ही सेज दैट सिटी प्लानिंग और टाउन प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ in time and space. On the basis of known facts about place, work, and people, it involves the modification and correlations of various elements in the total environment for the purpose of increasing their service to the community. And it calls for the building of appropriate structured dwellings, industrial plants, markets, waterworks, drains, bridges, villages, cities to home, the activities of community to almost exist in the performance of all its needful functions in a timely and orderly functions. There are three basic and important tools are building blocks in town planning. ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, आपने देखना है इन्हें कि किस तरह से ये इंटररिलेट होते रहते हैं. इंक्लूडिंग प्लेस, पीपल एंड वर्क. ऑब्वियसली टाउन प्लानिंग है, टाउन बनना है तो जाहिर है हमें कोई जगह चाहिए जहाँ पे बनना है. बनाएगा कौन? इंसान बनाएंगे, पीपल. और क्या करना है उन्होंने? वर्क करना है. जाहिर है वर्क करेंगे तो ही कुछ बनेगा. तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? इंटर रिलेटेड. तो ये तीनों क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, एज दे आर सोर्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट. यानी प्लेस इंपॉर्टेंट है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए. जब हमने किसी चीज़ को डेवलप करना होता है, जैसे हमारा घर ही होता है,
पहले किस तरह का होता है, अगर हम चाहते हैं कि हम उसे दोबारा रेनोवेट करें, दोबारा बनाएं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसे अपग्रेड करें, पहले जिस कंडीशन में था उससे थोड़ी बेहतर कंडीशन में करें। तो इसीलिए जब हम टाउन प्लानिंग या अर्बन मैनेजमेंट करते हैं तो जब भी इसकी ज़रूरत पेश आती है तो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है। और पीपल क्या करते हैं, सोशल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें देखना पड़ता है कि वहाँ के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, किस अमाउंट में ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है। एंड थर्ड इज़ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। तो जाहिर है जब वर्क हो रहा है वहाँ पे वर्क कोई पर्सन ही कर रहे हैं ना, लोग ही, तो उनको एक तो काम करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, दूसरा उनका रोटी रोज़ी चल रही है। तो ये क्या तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, हाउ इट इज़ साइंस, कि टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट साइंस किस तरह है। अभी पीछे आपने डेफिनेशन में भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि ये एक साइंस है, ठीक है। किसी ने कहा कि ये आर्ट है प्लानिंग की और किसी ने कहा ये साइंस है प्लानिंग की। क्यों? क्योंकि हमें पहले कलेक्शन करनी पड़ती है डाटा की, फिर हम कोरिलेशन करते हैं, फिर एनालाइजेशन करते हैं और उसके बाद लास्ट स्टेप पे हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं साइंस में भी, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो ज़रूरी होती हैं। दैट्स वाई वी सेड दैट टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। सेकेंड, हाउ इट इज़ एन आर्ट। आर्ट कैसे है? ये आर्ट इस तरह से है कि हम डिज़ाइन करते हैं, बिल्डिंग का मॉडल बनाते हैं और फिर उसे बिल्ड करते हैं। थर्ड, फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग रेस्ट ऑन, क्या है, किसके ऊपर बिल्ड करती है? पीपल, वर्क एंड प्लेस। ये तीनों चीज़ें जो है ये हम आगे डिस्कस करते रहेंगे बारहा। सो प्लानिंग इज़ बोथ एंटिसिपेटरी एंड रिएक्टिव इन नेचर। प्लानिंग दोनों तरह से होती है, एंटिसिपेटरी भी होती है और रिएक्टिव भी होती है नेचर के अंदर। सो मुस्तकबिल को देखते हुए हर कोई जो है वो देखता है कि अपकमिंग टाइम पे हमें किस जगह पे क्या मसला जो है वो फेस करना पड़ सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही फिर जो है वो प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड टू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाउन प्लानिंग, कि बेसिक इसके गोल्स क्या हैं टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट के। टू हेल्प सिटी टू ग्रो, ये हेल्प करती है सिटीज़ को कि वो ग्रो करें। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। टू मिटिगेट डिजास्टर्स। मिटिगेट डिजास्टर्स का मतलब है, जाहिर है डिजास्टर्स आने हैं, कुदरती आफात आनी है, वो हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कोई इंसान तो नहीं पैदा कर रहा, वो तो कुदरती तौर पे हो रहे हैं। लेकिन हम इस तरह की प्लानिंग करते हैं कि जितने इफ़ेक्ट्स होने हैं, जैसे अब जल्जला आया, जितनी तबाही होनी है थोड़ी सी कम हो, ठीक है, या सैलाब आया है तो हम इस तरह की कंस्ट्रक्शन में चीज़ें यूज़ करते हैं कि नुकसान थोड़ा कम हो, वो चीज़ जो है वो अपनी जगह पे टिकी रहे, सही है। टू मिटिगेट डिसऑर्डर्स और डिसास्टर्स, सॉरी। टू इम्प्रूव इकोनॉमी ऑफ द नेशन। टू मेक राइट यूज़ ऑफ द लैंड एट अ कन्वीनियंस। लॉयर्स, ठीक है, लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं, जाहिर है जब ज़मीन का मसला है तो लॉयर्स तो इन्वॉल्व होंगे। हेल्थ एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। इनोवेशन इंडिविजुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी आती है, इंटीग्रेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड सोशल इक्विटी। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल्स क्या हैं प्लानिंग के, ठीक है। जोनिंग, जोनिंग का क्या मतलब है कि हम डिफरेंट जोन्स बना देते हैं कि इस जोन में ये होगा, इस जोन में ये, इस जोन में पार्क होगा, इस जोन में हम मस्जिद बनाएंगे, इस जोन में जो है वो शॉप्स होंगी, इस जो एरिया है यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी, इस एरिया के अंदर जो है वो घर होंगे। तो डिफरेंट जोन्स बन जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ पे। सेकेंड इज़ ग्रीन बेल्ट हाउसिंग। ग्रीन बेल्ट हाउसिंग क्या है? घरों के बाहर जो ग्रीनरी ग्रीनरी होती है, या सड़कों के किनारे आपने देखा होगा कभी कभी सड़क के किनारे कभी दोनों किनारे पे क्या होता है, दरख्त होते हैं। तो वो होता है, वो ये भी प्लानिंग का हिस्सा होता है कि हमने ग्रीनरी रखनी है, तो वो बेल्ट उसका बेस्ट वे होता है कि ग्रीनरी हम सड़क के साथ साथ रखें, ठीक है, उसे ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट, हमने ट्रांसपोर्ट देखना होता है, जाहिर है अब हम एक घर बना रहे हैं तो एक गली, बल्कि अब हम पूरे टाउन बना रहे हैं या अर्बनाइजेशन कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है, तो जाहिर है हम दरमियान में रास्ता रखेंगे तो ट्रांसपोर्ट हो सकता है ना। ये तो नहीं कि हम घर बना दें अलग थलग जगह पे, ठीक है, वहाँ ना आने का रास्ता हो ना जाने का रास्ता हो, फिर ट्रांसपोर्ट, जाहिर है जब ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो फिर वो बाकी भी इंसान जो है वो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी उसकी मुतासर होंगी और वो जो है फिर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, जाहिर है वो कैद हो गया एक जगह पे, तो ये देखना पड़ता है। नेक्स्ट, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। अब एक अगर हम हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं तो उसमें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हमें देनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, मस्जिद है, ठीक है, शॉप्स हैं, ताकि लोग जो है वो अपने आस पास से चीज़ें ऑक्यूपाई कर लें। नेक्स्ट, पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस होनी चाहिए, किस लिए? ग्राउंड्स हो ताकि लोग खेल सकें, ठीक है, अपनी चीज़ें पार्क कर सकें, मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह। और रोड सिस्टम हो प्रॉपर, ये नहीं कि कच्चे रोड वगैरह हो और कोई जो प्रॉपर सिस्टम ना हो ड्रेनेज का। और तो इस लिहाज से प्रिंसिपल जो है प्लानिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है प्लानिंग करते हुए।
अच्छा, पीपल किस किस तरह इन्वॉल्व होते हैं, ये कितने लोग हैं, ये हमने अभी पीछे शुरू में पढ़ा ना आउटलाइन में, कि ये जो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट. नाउ वी विल सी दैट हाउ इट्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. सोशलिस्ट, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं इकोनॉमिस्ट, आर्किटेक्चर्स, अर्बन डिज़ाइनर्स, जियोलिस्ट एंड जियोग्राफर्स, environmentalist, ecologist, archaeologist, historicist एंड पब्लिक पॉलिसी मेकर्स. इतने लोग देखें अब शामिल हैं यहाँ पे. अभी हम वन बाय वन सारे आज की वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे कि किसका क्या काम है. तो ये सारे देखें, इतने सारे डिसिप्लिन के, इतने सारे डिफरेंट जो है स्टेटस के लोग, इतने ज़्यादा जो है डिफरेंट ज़रूरियात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड होकर काम कर रहे हैं अर्बनाइजेशन के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए. सोशलिस्ट का क्या काम है? सोशलिस्ट एक्ट एज अ ब्रिज काम करते हैं. ब्रिज किस लिए होती है ना, कि दो चीज़ों के दरमियान राब्ता कायम करती है ब्रिज, बिटवीन द पीपल एंड प्लानर. जो प्लानिंग कर रहा है उसके दरमियान और पीपल के दरमियान. क्या वो सोशलिस्ट बताएगा कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? किसे बताएगा? प्लानर को. ओवरनाइट चेंज नहीं आता, ठीक है. कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक रात सोएं, सुबह उठें तो आप कह रहे हैं जी इसकी ये ज़रूरत है, अगली रात आप सोएं फिर कह रहे हैं जी ये ज़रूरत है, ठीक है. चेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है. जब तक लोग वहाँ की अडेप्टेबिलिटी शो नहीं करते, ठीक है, या उस एरिया का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसको कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती, तब तक वहाँ पे टाउन प्लानिंग या अर्बन मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे कि मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में क्या हुआ जी, सी पैक का प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हुआ, आपके सामने है. तो उनको अभी तक मसला है, ठीक है. बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको अभी तक मसला है कि यहाँ पे सी पैक का प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया. लोग जो हैं वो उसको रजिस्ट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उस चीज़ के पहले प्रेडिक्शन नहीं की गई, ठीक है. उन्हें पूछा ही नहीं गया कि उसकी ज़रूरत है या नहीं है, या लोगों से नहीं पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, या आप क्या चाहते हैं, हम बना लें या नहीं बना लें. लेकिन हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने कोई सर्वे नहीं करवाया, ठीक है. उसने कोई पार्टिसिपेटिव प्लानिंग नहीं की. लोगों की क्या ईगो हर्ट हुई. उन्होंने कहा कि हमारा जो है यह जगह है और यहाँ पे बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, वर्क भी उनको दे रहे हैं, तो हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है. तो हुकूमत को चाहिए था कि पहले उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करती, उनसे पूछा जाता, ठीक है, कि चीज़ जो है वो कितनी है या नहीं है. तो इसी वजह से बलूचिस्तान के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मजम्मत कर रहे हैं इसकी, सी पैक की. अगर किसी जगह का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ख़राब करेंगे तो लोग जो है वो अपने रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगे तो ना, कि उनके रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा. यही कुछ कराची में हुआ है, ठीक है. कराची पाकिस्तान का आपको पता है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत ज़्यादा आबादी वाला इलाका है. लोग वहाँ पे हिजरत करके जाते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं. बड़ा शहर है पाकिस्तान का कराची, ठीक है. 75% GDP जो है कराची पाकिस्तान को देता है, ठीक है. ये सारे क्राइसिस जो हैं ये क्या हैं? क्योंकि वहाँ की आवाम जो है वो डेमोग्राफिक जिनका जो है स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है, तो फिर वो जगह जो है ग्रो नहीं करती. इसीलिए क्यों कराची में इतने मसाइल हैं, इतनी रोज़ वहाँ पे डाके वहाँ पे हो रही हैं, चोरियाँ वहाँ पे हो रही हैं, पानी के मसाइल वहाँ पे हैं, ड्रेनेज के सिस्टम वहाँ पे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का गिरता जा रहा है. तो ये सारे मसाइल इसी वजह से हैं कि वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और वहाँ का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है. नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट क्या रोल प्ले करते हैं? इकोनॉमिस्ट फॉरेन आर्किटेक्चर होता है, ठीक है. इसका क्या काम होता है? शहरों को बसाने का काम करता ही टाउन प्लानर होता है, ठीक है. जोन ऑफ रेगुलेशन जो होती है, इफेक्ट होती है. जब कोई गलत काम होगा तो उसकी फिर क्या होगी, रिप्रेसेशन हमें देखने को मिलती है. आर्किटेक्चर बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है, इनोवेशन करता है कि कौन सी नई चीज़ आनी चाहिए, जिद्दत पसंदी आनी चाहिए, ताकि इंडिविजुअलिटी है जो है टाउन सिटी की वो मेंटेन रहे और उसके अंदर कंटिन्यूटी आए. क्यों? ताकि सिमेट्रिकल बैलेंस प्रोड्यूस हो सके. एक अर्बन आर्किटेक्ट जो है वो पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को चला रहा होता है. वही बता रहा होता है कि अब ये नीड है, ये डीड है, या हम इस तरह की इनोवेशन करें, इस तरह की चेंजिंग्स करें तो लोग जो है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और हम जो है वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है. इकोनॉमिस्ट पैसे है ना, वो कहता है कि यहाँ पे ये चीज़ें रखो, लोग जो है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट आएंगे. जाहिर है जब लोग आएंगे वो शॉपिंग करेंगे या कुछ खाने पीने की चीज़ लेंगे या कुछ भी इस तरह का मसला है, तो वो इकोनॉमिस्ट बताता है कि आप यहाँ पे ये बनाएं, यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, तो फिर लोग आएंगे और आपको पैसा मिलेगा. अर्बन डिज़ाइनर जो है वो पूरी अपनी जो है वो ओपन प्लेस करता है डिज़ाइन को. जैसे सड़क के किनारे क्या लगना है, वॉकिंग की जगह क्या आएगा, वॉकिंग पे हम किस तरह की डिज़ाइनिंग बनाएं, ये सब कुछ कौन करता है? अर्बन डिज़ाइनर. फिर आता है इकोलॉजिस्ट. इकोलॉजिस्ट हैव हैवीली इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया.
इकोलॉजिस्ट बताता है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी शहर में अब फैक्ट्री बनने जा रही है, तो अब इकोलॉजिस्ट बताएगा कि आप इस जगह पे बनाएं या नहीं बनाएं, यहाँ पे इर्द गिर्द आबादी है, लोग हैं, उनको सांस के मसाइल होंगे, कोई और मसाइल होंगे, गर्मी बढ़ जाएगी, तो ये एरिया सेंसिटिव है, आप यहाँ पे ना बनाएं, बल्कि ये वाला जगह जो है ये ज़्यादा बेस्ट है, तो आप यहाँ पे बनाएं। ये बेसिकली इकोलॉजिस्ट का काम होता है। बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर भी करता है, ताकि ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी कोई नुकसान ना हो, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, जो भी आपकी इंपोर्ट है। हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हैं उसको इम्प्रूव करता है, और जो है वो तरीके बताता है कि हम किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो हमें पास्ट बताता है, ठीक है, हिस्ट्री बताता है। सो आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि ये एरिया जो है बिजनेस वाला एरिया है या नहीं, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री को बताता है कि लाइफ जो है यहाँ पे पहले कैसी थी, अब किस तरह की है, अर्बन डिज़ाइनर के साथ मिल के काम करता है और कोलैबोरेशन करता है, और फिर जाके अपना काम कंप्लीट करता है। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग लॉज के बारे में बताता है कि लीगल वर्क है या नहीं है। लॉयर्स क्या करते हैं? लॉयर्स इन्वॉल्व इन, जैसे आप जो लॉयर्स हैं, ठीक है, आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि रिवर रावी जो है, दरियाए रावी, ये अर्बन अथॉरिटी के पास है, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट है, और वो कहता है कि ये जो है एक्विजिशन का मसला था। हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो ये बताता है कि एपिडेमियोलॉजिस्ट रोल प्ले कितने हैं, कि अगर कोई पैराडेमिक आ जाती है तो क्या वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पे जो है हॉस्पिटल बनाए जा सकें, या फिर जो है वहाँ के मसले मसाइल यूज़ कर सकें। आप देखें पाकिस्तान का जो सिस्टम है टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट का, अभी इतना अपग्रेड नहीं है, इसलिए ये मसले मसाइल बन रहे हैं हर शहर के अंदर। जैसे अभी हम रिसेंटली देखें, अभी जो पीछे सैलाब आया था, और दरियाए रावी की इन्होंने जगह दी हुई थी डिफरेंट सोसाइटीज़ को कि वहाँ पे वो अपने घर बना सकते हैं, क्योंकि रावी जो है वो आधा साल जो है वो सूखा रहता है, बल्कि कभी कभी तो सालों भी वहाँ पे पानी नहीं आता। तो लोगों ने वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई, अपने घर बनाए, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया, फिर क्या हुआ, अचानक जो है वो सैलाब आ गया, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो हालांकि ये काम किसका था? टाउन प्लानिंग का था ना, अर्बन मैनेजमेंट। इन सब चीज़ों को मिल के इनको देखना चाहिए था कि ये डेंजर है। जस्ट उन्होंने अपना फ़ायदा देखा गवर्नमेंट ने, और उन्होंने उनको अलॉट कर दिया, और बदले में फिर क्या हुआ, नुकसान हुआ। रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, सोशल इक्विटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। फिर रोल ऑफ जियोग्राफर जो है वो बताता है कौन सी साइट बेस्ट है लैंड यूज़ के लिए, और स्पेशल एनालिसिस करता है अर्बन ग्रोथ मैनेजमेंट को देखते हुए और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग को देखते हुए। फिर है रोल ऑफ सिविल इंजीनियर क्या काम करता है? A team engineer providing technical expertise and knowledge in the planning, design, and construction of infrastructure projects within a town and planning. So, site analysis and feasibility studies show that the area's potential, develop sites and conduct feasibility studies to determine the viability of projects. तो डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए जो है ये काम कर रहे होते हैं। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और डिज़ाइन कैसे होता है, कि वहाँ पे उस जगह की ट्रैफिक फ्लोज क्या है, हाइड्रोटिक कंडीशंस क्या हैं, वहाँ की जो है डेवलप जो एफिशिएंटली हो रही है नहीं हो रही, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। थर्ड, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट करनी पड़ती है कि अगर सैलाब आ जाता है तो हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं फ्लडिंग को विद इन टाउन एंड सिटी। डिज़ाइन ड्राइंग सिस्टम एनालिसिस रेनफॉल पैटर्न्स एंड कैलकुलेट रन ऑफ वॉल्यूम्स टू एंश्योर इफेक्टिव स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई नागहानी आफत आ जाए तो हम उसे किस तरह से लड़ सकते हैं। द सिटी एग्जिस्ट, ठीक है, द सिटी एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ. It is not merely a physical entity but a social and political community where people come together to live and work collectively for their well-being and happiness. अरिस्टोटल ने कहा कि शहर और कुछ नहीं है, जस्ट ये है कि लोग वहाँ पे मिल के काम करते हैं ताकि वो एक दूसरे को फ़ायदा दें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें और खुशहाल जो है वो ज़िंदगी बसर करें, सोशली, पॉलिटिकली और गुड लाइफ के लिए। डिवाइस स्कॉट ब्राउन, आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर, इसने कहा कि आर्किटेक्चर कांट फोर्स पीपल टू कनेक्ट, इट कैन ओनली प्लान द क्रॉसिंग पॉइंट्स, रिमूव बैरियर्स एंड मेक द मीटिंग प्लेसफुल, यूजफुल एंड अट्रैक्टिव। चार्ल्स कॉर्निया जो कि आर्किटेक्चर था, उसने कहा इट इज़ असेंशियल फॉर एन आर्किटेक्ट और प्लानर टू हैव अ सेंस ऑफ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो
ये सारा हमारा आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने बहुत ईजी वर्डिंग में समझाने की कोशिश की है। सो अगर आपको मेरा जो आज का लेक्चर है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड कनेक्ट विद मी टिल माई जर्नी। सो नेक्स्ट हम कल के टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाउन प्लानिंग डिटेल के अंदर, और जितने क्वेश्चन इसके बनते हैं इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। साथ साथ कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते रहे हैं, पास्ट टेंस क्या है इसका, और किस किस तरह का क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।